biotic and abiotic, on the basis of exhaustibility, renewable and non-renewable, on the basis of ownership, individual, community, national and international, on the basis of status of development, potential developed stock and reserves. Yeah. Types of resources on the basis of origin. Biotic resources. These are obtained from biosphere and have life such as human beings, flora and fauna, fisheries, livestock, etc. Abiotic resources. All those things which are composed of non-living things are called abiotic resources. For example, rocks and metals. On the basis of exhaustibility. Renewable resources. The resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical, or mechanical processes are known as renewable or replenishable resources. For example, solar and wind energy, water, forests, wildlife, etc. The renewable resources may further be divided into continuous or flow, non-renewable resources. These occur over a very long geological time. Minerals and fossil fuels are examples of such resources. These resources take millions of years in their formation. Some of the resources, like metals, are recyclable, and some, like fossil fuels, cannot be recycled and get exhausted with their use. On the basis of ownership, individual resources. These are also owned privately by individuals. Many farmers own land which is allotted to them by government against the payment of revenue. In villages, there are people with land ownership, but there are many who are landless. Urban people own plots, houses, and other property. Plantation, pasture lands, ponds, water in wells, etc. Are some of the examples of resources ownership by individuals. Make a list of resources owned by your household. That's good. That's good. Um, Now we'll just discuss what you have just read. Just one sec. Uh, So this is it. We also have Sihan joining. So when we are talking about the resources and the development of this. So what do you mean by the resource? Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs is called as a resource. It is technologically accessible, economically feasible, and culturally acceptable that can be termed as a resource. Okay, now main thing in that there will be three different things which are our resources, which are interdependent. One is the nature, that is a resource. Then there is technology, and then there is institution. So now when we are talking about nature, so what all is there in the nature that will be our resource? Yeah, what all will be the resource? Yes, tell me slowly. Now you read, na? You can understand that there are so many resources in the environment. What are those which we use every time? There are the trees, the air, the minerals. These are the main things which have been used traditionally also for so many years. Apart from that, also the petroleum, the coal, the renewable and non-renewable resources which we use. Okay, so these are all our sources. Other than that, there are also the biotic factors like the sea
sea animals and the animals and the other organisms which we can use for our benefit. Okay, so all those things, that is our resource. Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs. So first part was nature, that is naturally available, which we don't have to make. Water and all these things, these are our resources, right? So we will be having the wildlife resource, we'll be having the water resource, we will be having the uh, environmental other resources. Okay, so these are the different examples. So there's a the second part is technological. Technological, what is technology resource? Can you tell me? It is so important. Give me one example in the present scenario of coronavirus and COVID-19 and all the lockdown because of which we are all stuck up in our houses for majority of the time nowadays. At least it has been relieved a little bit in this month, but earlier 2 months, so it was very strict. March, April, May, 2.5 months, isn't it? So it was very, very strict. So that time we were all locked in our house, but still we could connect with the outside world, even across the globe. How? Because of our digital infrastructure. So that is also a resource, right? Then the electricity, we had the electricity, so that is also the resource. So these are all because of the technological inventions. We had the telephone services, that is also resource. We had the cable TV services, that is also resource. We had the uh, water connections, that is because of the technology only. They could pump the water, they could make it available for us, isn't it? What else do you remember? कुछ और याद आ रहा है आपको जो है अवेलेबल बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी? बोलो बोलो, इसके एग्जाम्पल्स भी बोल सकते, सेम रिपीट भी हुआ तो चलेगा। चलो कि हाँ रीजा, नहीं तो आप है ना और वीडियो ऑन करो, आप लोग है ना वीडियो ऑफ करते हो सो जाते हो मुझे, प्लीज पुट ऑन योर वीडियो, देन ओनली वी कैन डू दिस चैप्टर फास्ट। And I started with this chapter because we don't know your English books, so you are not telling me also, and we just can't waste time. चलो बोलो मुझे। solar energy. Solar energy and what else? Start your video. I'll tell you you're right or wrong. How solar energy बेटा? सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी से आती है। हाँ, सूरज को कनेक्शन लगाया आपने। हाँ, स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हो क्या? क्यों बोल रही सोलर एनर्जी? मैं क्या पूछ रही हूँ, आपका ध्यान नहीं है ना, इसलिए मैं बोला मैंने वीडियो ऑन। आई एम आस्किंग अबाउट द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और रिसोर्सेज के एग्जाम्पल। अभी मैंने 30 सारे बोले, मैंने वो सुने, वो रिपीट करो। चलो तुम नहीं पढ़ा अभी इतना सारा, 2 पेज पढ़े इतने बड़े बड़े, इसमें कुछ तो आया होगा ना, बोलो। सीरियसली आई वाज नॉट पेइंग अटेंशन, मैं ये पेज ढूंढ रही थी। बोलो फास्ट फास्ट फास्ट। जल्दी, नहीं याद आ रहा क्या बोला मैंने अभी। व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, ऐसे क्या कर रहे हैं? आई वाज सेइंग कि जैसे अभी ये पूरा लॉकडाउन हो गया, सुना तुमने मैंने बोला? हाँ, नहीं सुना? क्या सुना कर रही मैम, थी तुम? सुना चाय पीने मैम। चले गए थे क्या? नहीं मैम, सुना। तो क्या बोला मैंने, रिपीट तो करो। सच में चाय पी रही होगी इसलिए हंस रही है। नहीं, कोई बात नहीं, पी हुई तो तुम सुनो और कुछ भी करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट पे सुना, अटेंशन। सच्ची सुना। क्या सुना?
देख अभी गई कियान भी, जल्दी जल्दी बोलो, ऐसे वो जाती रहती है भाग भाग के फिर। इसका एक तो नेटवर्क प्रॉब्लम है। भूल गए। भूल गए? ऐसे कैसे भूल गए? फिर आगे भी पढ़ा आपने, ऐसे पढ़ने का कुछ भी कुछ भी ना, इंटरेस्टिंग है ये सब। क्या क्या होता है ये? अब ये इंस्टीट्यूशंस दिया है, इसमें क्या क्या आएगा? इंस्टीट्यूशंस दिया है, उसका क्या मीनिंग है? व्हाट इज इंक्लूडेड इन दैट? तीन चीजें हैं ना, दे आर टॉकिंग अबाउट व्हेन ह्यूमन बीइंग्स आर स्टेइंग समवेयर, आर वी स्टेइंग इन आइसोलेशन? अकेले है कि हम पोल पे से नॉर्थ पोल में अकेले, जहाँ पे कोई आता नहीं जाता नहीं, कुछ है नहीं वहाँ पर? आर वी स्टेइंग लाइक दैट? उधर आप बोलोगे ना बाबा मैं तो नॉर्थ पोल में हूँ, मुझे पता नहीं व्हाट इज दिस, तो आई अग्री, बट यू आर स्टेइंग हियर इन पुणे, तो कितना कनेक्टेड है? So so much resources you are using and you don't know what you are using. What all resources you are using? What are the natural resources? चलो बोलो. Air, water, minerals, Very good. uh, And what are the technological resources? automobile Okay. or smartphones Uh, or चलो कियान, वेरी गुड. ऐसे भाग नहीं जाने का क्वेश्चन पूछा तो. आई एम स्टिल स्टक ऑन दैट क्वेश्चन. तुम्हारे लिए रुके थे, अभी तुम आ जाओगी वापस घूम के. चलो बोलो, तुम बोलो अभी. चलो, व्हाट आर द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन? टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं बोलो. जैसे कि अभी रिजा ने कुछ कुछ कहा है, आप भी कुछ कहो. आपको सुनाई दे रहा है? कियान, आपको सुनाई दे रहा है क्या? कैन यू हियर मी? मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। तुम्हारे को है ना बराबर टाइम पे ही वॉइस ब्रेक होती है जब मैं कुछ पूछती हूँ. नहीं मैम सच में आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ये कैसे सुना मैंने जो अभी बोला? अच्छा ठीक है. नहीं उससे पहले माय क्वेश्चन इज व्हाट आर द टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज? अभी क्यों पूछ रही है? तू अपना देख ना, इधर मुझे देख. व्हाट आर द टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज? अरे कुछ भी टेक्नोलॉजी नहीं यूज करते तुम. बैठे हो उधर लेकर मोबाइल, लैपटॉप, ये सब टेक्नोलॉजी है ना. बोलो फास्ट. मैं बताऊंगी. हाँ मेरे को कुछ आता नहीं है बाबा तेरी बहन को. What? He doesn't tell you what? You don't discuss with him anything? He doesn't give you ज्ञान? थोड़ा ज्ञान देने को बोलना उसको, एक्स्ट्रा नॉलेज को. बुक का बुकिश मत बनो तुम. उसको देखो पूरे दुनिया की खबर रहती है. बियॉन्ड द सन ऑल्सो ही मस्ट बी नोइंग. अपने को सिलेबस में अभी फिलहाल ज्योग्राफी में अंडर द सन ही है. चल बोले अभी, चल जल्दी. चल मैंने दो चीजें बोल दी जो तेरे हाथ में. आगे बोलो और क्या यूज करते हैं. आई जस्ट टोल्ड यू कि अभी लॉकडाउन में हमने कैसे किया कि हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं था, तो वी आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी. जो हमारे पास अभी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो जो फार ऑफ प्लेसेस से हमें अगर इंटरैक्ट करना है तो वी कैन इंटरैक्ट यूजिंग द जूम ऐप और इंटरनेट और व्हाट्सएप. तो ये सब हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है ना. दूसरी भी बातें क्या होती है, जैसे कि हम टेलीविजन से देख सकते हैं, कुछ भी न्यूज देख सकते हैं क्या हो रहा है एंड ऑल दैट. सो अगेन दैट इज बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी. और अगर अगर
लॉकडाउन से पहले इतने सारे इन्वेंशन नहीं हुए होते तो हमें ये सब मालूम पड़ता क्या बाहर गए बगैर? नहीं, वी आर सो थैंकफुल के लॉकडाउन से पहले ये सब हो चुका था, so we knew what is happening outside, right? Then also about other things like अभी ये पूरे टेक्नोलॉजी की वजह से कितनी चीजें बन गई है. There we have so many you know uh, available resources which we use regularly. है ना? दैट इज बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी मतलब क्या? जो भी साइंस और मैथ्स सॉरी इंजीनियरिंग की वजह से जो भी चीजें बनती है दैट इज नोन एज टेक्नोलॉजी. है ना? जैसे कि अभी हम वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी. दैट इज ऑल्सो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन. वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द वाटर सप्लाई जो भी हमें मिल रहा है. अभी ये सब के लिए हमें बाहर जाना. दिस इज ऑल्सो रिसोर्स ना. ये कौन से कैटेगरी में आएगा? टेक्नोलॉजी में आएगा. इजंट इट? द थर्ड ट्राइंगल का थर्ड पार्ट तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक नहीं है क्या? तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक नहीं है, डाउनलोड करो ना फिर गूगल से. इजीली हो जाता है. गूगल पे है. मैं अभी गूगल खोल के बैठी हूँ, मेरे पास भी नहीं है टेक्स्ट बुक. इट इज देयर ऑन गूगल. लर्न सीबीएसई लिखा है इसमें. फुल टेक्स्ट बुक मेरे सामने है. यू हैव टू ओपन एंड डाउनलोड. डाउनलोड करो गूगल ड्राइव में और एवरी टाइम यू कैन यूज इट. ठीक है? और थर्ड हमारा एंगल है इसका ट्राइंगल का. थर्ड एंगल क्या है? इंस्टीट्यूशन. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंस्टीट्यूशन? तुमको स्क्रीन पे तो दिख रहा है ना अभी किहान? व्हाट इज दिस इंस्टीट्यूशन? ये दिख रहा है ना? ये क्या है? इंस्टीट्यूशन मतलब क्या? हाँ, व्हाट इज द इंस्टीट्यूशन? इंस्टीट्यूशन नहीं पता? जैसे स्कूल कॉलेजेस ये सब इंस्टीट्यूशंस हैं. ये सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं. उसके अलावा दूसरे भी होते हैं हॉस्पिटल जो हेल्थ केयर के लिए होते हैं. है ना? फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जैसे चर्च मॉस्क टेम्पल. ये भी इंस्टीट्यूशन है. फिर एनजीओज होते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. ये भी इंस्टीट्यूशंस हैं. तो कितने सारे गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कितने सारे कम्युनिटी के हमारे रिसोर्सेज होते हैं. ये सब इंस्टीट्यूशन में आएंगे. गॉट इट? तो ये सब हमारे रिसोर्सेज है ना. अगर हम दुनिया में रह रहे तो हम लोग मैंने जैसे कहा वी आर नॉट स्टेइंग इन आइसोलेशन. अकेले हम पोल पे नहीं रह रहे नॉर्थ पोल पे कि हमें कुछ पता नहीं है क्या है क्या है. हमारे पास सब कुछ है. वी हैव ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज. वी हैव द टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड वी ऑल्सो हैव द इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज. ठीक है? नाउ वी गो अहेड. अभी रिसोर्सेज में भी पार्ट्स हैं जैसे कि renewable and non-renewable we have in the natural resources. In human we have the structures and institutions, and in the we also have the quantity quality. ये सब हमारे resource. अभी ये structures मतलब क्या? What do you understand by the structures? Can you give some example? Come on, tell me first. What do you say about the different structures and institutions? ये part में दिख रहा है right side को. बोलो भला, जल्दी बोलो. स्ट्रक्चर्स नहीं पता? अरे जो भी बिल्डिंग्स होंगे, जो भी ब्रिजेस होंगे, हाईवेज होंगे, ये सब तुम्हारे रिसोर्सेज है ना. अभी तुम ट्रैवल करते हो नानी के यहाँ से यहाँ, यहाँ से नानी के यहाँ, तो कैसे जाते हो? रोड से जाओगे ना. तो वो सब रिसोर्सेज है. क्या पैदल पैदल ऐसे ही घाटी में चढ़ चढ़ के जाओगे? फिर
बोलो ना, तुम इतना सब कुछ यूज कर रहे हो, व्हीकल्स यूज कर रहे हो, व्हीकल्स आर ऑल्सो द रिसोर्सेज, so many resources you are using and you don't know. Petroleum you are using, डीजल यू आर यूजिंग, नेचुरल गैस यू आर यूजिंग, कितनी चीजें यूज कर रहे हो। ये सब कुछ अवेलेबल था ना, लॉकडाउन था तो भी था ना, नेचुरल गैस, कुकिंग गैस भी था, ये सब रिसोर्सेज है। तो रिसोर्सेज नाम से तुम इतना क्यों अनजान हो, पता ही नहीं आपको क्या होता है रिसोर्स। So we are talking about the natural and not natural, artificial resources also. Natural में आएंगे जो रिन्यूएबल भी होते हैं और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब जो बनते रहते हैं, वापस से बन सकते हैं, जैसे कि विंड एंड वाटर इज ऑल्सो रिसोर्स। हाँ, नहीं तो अब बोलेंगे क्या है, तो फ्री में अब तो बहुत सारी हवा आती है यहाँ पर, तो उसका क्या फायदा, फ्री में मिला है। कुछ भी फ्री नहीं होता है दुनिया में, ये सबको हमें संभाल के यूज करना पड़ता है और ये सब कुछ खत्म हो सकता है अगर आप इसका ठीक से इस्तेमाल ना करो। अभी फिलहाल में आज की डेट में तो वी हैव दीज थिंग्स विच आर गोइंग टू बी कंटिन्यूअस, लाइक विंड एनर्जी, वाटर रिसोर्स एंड ऑल्सो सोलर एनर्जी। ये सब अनलिमिटेड है, सो इट इज रिन्यूएबल, रोज मिलता है। बट देर आर सर्टेन रिसोर्सेज विच आर नॉट रिन्यूएबल ऑल्सो, जस्ट लाइक ट्रीज अगर हम कट डाउन करेंगे और फिर एक दिन वो खत्म भी हो सकती है ना, एग्जॉस्ट हो सकती है, जैसे कि और फिर पेट्रोलियम हुआ, कोल हुआ एंड अदर रिसोर्सेज विच आर अंडर द ग्राउंड, जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं और वो डिप्लीट भी हो सकते, खत्म भी हो सकते हैं। एंड देन ऑल्सो उसमें भी दो टाइप्स हैं, जैसे कि रिसाइक्लेबल भी हो सकते हैं एंड नॉन रिसाइक्लेबल भी हो सकते हैं। अगर कुछ कुछ रिसोर्सेज खत्म होते हैं तो वी कैन रिसाइकिल एंड वी कैन मेक इट, लाइक मेटल्स। मेटल्स आप यूज अप करेंगे फिर आपको वो खत्म हो जाएंगे ऐसे आपको लगता है, बट अगर स्क्रैप में वही मेटल यूज करते हैं और स्क्रैप में दे देते हैं तो यू कैन रिसाइकिल दोज मेटल्स। बट अगर आप दूसरा फ्यूल यूज कर रहे हो, पेट्रोल यूज कर रहे हो, उसको आप रिसाइकिल कर सकते हो क्या? नहीं, एक बार वो खत्म हो गया, है ना, लाइक दैट। Similarly, you have in the two types in the biological resources. One is the vegetation and the wildlife, है ना, प्लांट्स, ट्रीज, ये सभी तो हम लोग यूज करते हैं और वो रिन्यू भी होता रहता है। बार बार अपन बहुत सारे प्लांट्स लगा भी सकते हैं, बट अगर नहीं लगाते हैं तो वो भी खत्म हो सकते हैं। और वाइल्ड लाइफ, वो भी अगर एंडेंजर्ड नहीं होनी चाहिए, लाइक इफ यू कीप ऑन किलिंग द डिफरेंट स्पीशीज देन दैट विल ऑल्सो बी ओवर, उसके बाद हमारे पास और नहीं रहेंगे। Similarly, now we go ahead and read a little from here what you read. Do you think that resources are free gifts of nature? They are not. Resources are a function of human activities. Human beings themselves are essential components of resources. They transform material available in the environment and use them. These resources can be classified in the following ways. On the basis of origin, it can be biotic and abiotic. On the basis of exhaustibility, they can be renewable and non-renewable. On the basis of ownership, they can be individual, community, national, and international. On the basis of development, they can be potential or developed, stock and reserve. So, हर एक basis पर let us read it and let us at least identify two resources from each category. तो इन्होंने दिए भी हैं एग्जाम्पल्स। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक रिसोर्सेज में दो टाइप्स कौन सी होंगी? बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रिसोर्स तो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग, है ना। फ्लोरा, फौना, फिशरीज। अगर हम अकेले होते पूरे वर्ल्ड में तो कैसे होता है ना, गुड, देयर आर मेनी अदर पीपल ऑल्सो अराउंड, so दे आर ऑल्सो रिसोर्सेज, है ना। तो कितने सारे काम हो जाते हैं, सब काम नहीं तो अकेले ही करना पड़ता। These are obtained from biosphere and have life, such as human beings, flora, fauna, fisheries, livestock, etc. Abiotic resources, all those things which are composed of non-living things are called as abiotic resources. For example, rock and metals. On the basis of exhaustibility, renewable resources, the resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical, or mechanical processes are known as renewable.
और replenishable resources. For example, सोलार एंड विंड एनर्जी, है ना, अभी हमने ये भी डिस्कस किया. उसी तरह से नॉन रिन्यूएबल. ठीक है. फिर ओनरशिप पर, अगर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इंडिविजुअल रिसोर्सेज, देयर आर सो मेनी ओन्ड बाय individual. Many farmers have their own land. Then they have to also pay the taxes of the ownership of a property. वो भी है ना. Even people in the urban areas, they have plots, houses, पता है ना, shops, offices, property, building, कुछ भी होता है लोगों के पास, तो उसका भी उन्हें टैक्स भरना होता है. So these are the common individual areas, खुद का होता है. Then there are which are shared by everyone. सबके साथ अब शेयर भी, ऐसी कौन सी रिसोर्सेज होती है जो सबके साथ शेयर करते हैं? जैसे कि पार्क हो गया, है ना, हॉस्पिटल्स हो गए. ऐसा होता है क्या अपना पर्सनल पार्क है, अपना पर्सनल हॉस्पिटल है? ऐसा नहीं होता ना, एक्सेप्ट फॉर अगर बहुत ऐसे कोई किंग टाइप कोई होगा तो. But otherwise, people have to, even the kings, and they also have to go to the hospitals which are for others also available, है ना. But these are the common facilities. These are also our resources. So उस कैटेगरी में क्या क्या आएगा बोलो? उसमें आएंगे बहुत सारे पॉन्ड्स, वाटर इन द वेल, एंड फिर ऐसे पार्क और ये सब चीजें, ये सब आएंगे जो कॉमनली यूज करते हैं. फिर जो बरियल ग्राउंड रहते हैं जहाँ पे डेड बॉडीज को बैरी करते हैं, फिर पिकनिक स्पॉट्स होते हैं, फिर प्लेग्राउंड्स होते हैं, ये सब हमारे कॉमन एरियाज में आता है. ठीक है, कम्युनिटी रिसोर्सेज. फिर नेशनल रिसोर्सेज, कुछ चीजें होती हैं जो कंट्री वाइज दी हुई है. जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, रोड्स, कैनाल्स, रेलवेज, है ना. These are for the whole country. पूरे इसके लिए होते हैं. The country has the legal power to acquire even private property for public good. अगर तुम्हारी प्रॉपर्टी ऐसी जगह पे जैसे प्लान में रोड जा रहा है तो वो आपकी प्रॉपर्टी अक्वायर कर सकते हैं. हाँ, they might pay you and give you another plot, something like that they can do, but they can acquire your plot. अगर उनको वहां से मेट्रो बनानी है या रेलवे कुछ भी बनाना है तो that time. फिर उसके बाद है इंटरनेशनल रिसोर्सेज. लाइक इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होता है? जैसे कि जो ओशन में होता है ना, ओशन में तो अपनी बाउंड्री नहीं है ना. जितना अपनी बाउंड्री है उतनी अपनी कंट्री है. जहाँ पे अपना लैंड खत्म, अपनी कंट्री खत्म. अपन बोल सकते हैं क्या बाबा ये हमारे नजदीक है ये ओशन, तो ये ओशन हमारा है, इंडियन ओशन हमारा है, अरेबियन सी हमारा है. तो उसमें भी फिर से फाइटिंग शुरू हो जाएगा. इसके लिए इट इज ऑल्सो टोल्ड के अप टू बियॉन्ड 200 kilometers it is the exclusive economic zone and it is the open ocean and no individual country can utilize these without the concurrence of international institution. इस 200 kilometers के विदिन में जो भी तुम्हारे को मिलता है वो तुम्हारी कंट्री का है. फिश हो या कुछ हो, पर्ल्स हो या जो भी हो. So any other resources that will be of your country. Otherwise, it will be of the international institution. On the basis of the status of development, डेवलपमेंट हो रहा है अभी तक नहीं. दो कैटेगरी है उसमें. एक डेवलप हो गया है और एक डेवलपिंग है. दो कैटेगरीज होगी. तो जो डेवलपिंग है उसका नाम क्या है? पोटेंशियल. पोटेंशियल मतलब हो रहा है अभी. देयर इज, अभी जैसे बच्चे होते हैं ना, वो जो अच्छा पढ़ता है तो उसको बोलेंगे हाँ ही इज ऑलरेडी स्टडिंग, इज डेवलप्ड ना. और जो सीख रहा है बेसिक, ही इज गॉट द पोटेंशियल टू डेवलप. वैसे ही देर आर सर्टेन रिसोर्सेज विच हैव पोटेंशियल, इन द फ्यूचर दे विल बी हेल्पफुल एंड देर आर ऑलरेडी यूज कर रहे हैं हम, जो ऑलरेडी काम आ चुके हैं, दैट इज डेवलप्ड. So that is two types of resources, potential and developed resources. So potential resources में है resources which are found in a region but have not been utilized.
For example, the western parts of India, particularly Rajasthan, Gujarat, have enormous potential for development of wind and solar energy. But so far, these have not been developed properly. है ना, वहाँ पे बहुत ओपन लैंड भी है, प्लस विंड भी है, प्लस सनलाइट भी भरपूर है. सो बट वी हैव नॉट मेड प्रॉपर यूटिलाइजेशन. क्योंकि हम लोग अभी तक ट्रेडिशनल सोर्सेज ही और यूज कर रहे, कन्वेंशनल नहीं यूज कर रहे. डेवलप्ड रिसोर्सेज में क्या है? रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड ऑलरेडी यूज्ड. तो इसमें हमारे पास क्या एग्जांपल है? कोई क्या है एग्जांपल? वाटर रिसोर्सेज है ना, हमने इसको तो काफी यूज किया है. हमारे पास बहुत सारे हाइडल पावर स्टेशन हैं. So that is our developed resource. Then stock, materials in the environment which have potential to satisfy human needs, but human beings do not have the appropriate technology to access these, are included among the stock. For example, water is a compound of two inflammable gases, hydrogen and oxygen, which can be used as a rich source of energy, but we do not have the technology to use them for this purpose. Technology कम होने की वजह से हम लोग अभी तक ये नहीं कर पाए हैं. Then is reserves. Reserves are the subset of stock which can be put into use with the help of existing technical know-how, but their use has not been started. These can be used for meeting future requirements. तो फ्यूचर में हम इसको यूज कर सकते हैं. उसको क्या बोलते हैं? रिजर्व. जैसे हम बोल सकते हैं ना, फॉरेस्ट रिजर्व है हमारे पास, वाटर रिजर्व है. तो दीज आर ऑल फ्यूचर के लिए रखा, उसको बोलते हैं रिजर्व. बैंक में होता है ना पैसा, अभी जब तुम्हारी 10th हो जाएगी, फिर तुम्हें एडमिशन करना है, तो अभी रिजर्व को निकालना पड़ेगा. तभी मेडिकल जाओ या इंजीनियरिंग जाओ, तभी आपको ये सब रिजर्व काम आएंगे. सो दैट इज अ सबसेट ऑफ दिस स्टॉक. अभी अभी निकाल के आप एडमिशन लोगे क्या? नहीं, क्योंकि अभी तो आपको 10th भी करना है. ठीक है. So that is done only when you have finished your this task. So similarly, when we have certain resources in our country जो अभी हमें लग भी नहीं रहे हैं और अभी हमारे पास टेक्निकल नॉलेज भी नहीं है उस बारे में, दो रीजन से हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं. such resources are known as reserves. कहाँ तक पढ़ा था रीजा तुमने? आगे भी पढ़ा? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज तक पढ़ा था. अच्छा, तो हम आगे चले गए ना. अच्छा. हाँ. So reserves are other subset of these stock which can be put into use with the help of existing technical know-how, but their use has not been started. They can be used for meeting the future requirements. River water can be used for generating hydroelectric power, but presently it is being utilized only to a limited extent. There is water in the dams, forests, etc. is a reserve which can be used in the future. जो हम लोग रिजर्वॉयर्स में भी पानी जो कलेक्ट करते कि अगर फ्यूचर में जरूरत पड़े तो वी कैन डिस्ट्रीब्यूट इट टू दो पर्टिकुलर एरियाज. तो ऐसे भी है हमारे पास रिसोर्सेज. दे आर ऑल्सो आवर रिसोर्सेज because they can be used in the future, not in the present. If the present trend of resource depletion by few individuals and countries continues, the future of our planet will be in danger. है ना, अगर हमारे कंट्री या दूसरे कंट्रीज इसका मिसयूज करते हैं तो हमारे पास फ्यूचर में कोई रिसोर्सेज ही नहीं बचेंगे. There will not be any resources. So therefore, resource planning is essential for sustainable existence of all forms of life. Sustainable existence is a component of sustainable development. तो ये यहाँ तक तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. आप रीड करो जहाँ से आपने रुक गए थे. इसके आगे हम करेंगे फिर. बोलो रीजा, तुम ही रीड करो. देखो कियान के पास बुक नहीं है आपके पास. On the basis of